Well, amidst the heat and dust of Maharashtra election campaign, the war of words has only been getting more and more torrid by the day. In fact, from vote jihad to Razakars to Aurangzeb ki aulad to love letters to the British, well, it's all now come down to a tu tarak as well down in Maharashtra political discourse. Believe it or not, it's all down to dogs now. Well, quite literally at that. In fact, the Maharashtra Congress chief Nana Patole has nosedived into Devendra Fadnavis versus Asaduddin Owaisi fight. First, let's tell you about what exactly it is that Devendra Fadnavis said while targeting Owaisi and then invoking the Mughal tyrant Aurangzeb. Fadnavis said that Owaisi must stay in Hyderabad because he has no business in Maharashtra. He further added that Aurangzeb is being glorified by some, which is completely unacceptable, and then came the blistering barb. He said, any true Indian, Muslims don't see Aurangzeb as their hero, and that even dogs won't urinate on his legacy. Listen in to this acerbic war. यहाँ पर आकर हमको धमकियां दी जा रही है, यहाँ पर आकर औरंगजेब का महिमा मंडन हो रहा है। मैं बता देना चाहता हूं, भारत का जो सच्चा मुसलमान है वो भी औरंगजेब को अपना हीरो नहीं मानता। अरे औरंगजेब तो आक्रमणकारी था, उसने हम पर आक्रमण किया था। इसलिए सुन ले ओवैसी, कुत्ता भी ना पेशाब करेगा औरंगजेब की पहचान पर। अब तो तिरंगा लहराएंगे पूरे पाकिस्तान पर। Well, there you have it. That is the kind of words, the kind of political discourse that we are seeing in Maharashtra. And now to what Congress's chief in the state, Nana Patole, has said. Reacting to Devendra Fadnavis's dog comment, Nana Patole has now compared BJP to the dogs and said it's time to tame the BJP just like we tame dogs. This dog comment has, of course, triggered a furious reaction from the BJP as well. But first, listen in to what exactly it is that Congress Maharashtra chief Nana Patole had said. आप बीजेपी को वोट करोगे जो तुमको कुत्ता बोलते हैं? आप बीजेपी को कुत्ता बनाने का समय आ गया है। बीजेपी को कुत्ता बनाने का समय आ गया है। ये इतनी मस्ती में आ गए कि ये किसी को, अब ये तो भगवान हो गए ना। Well, in just 8 days from now, the people of Maharashtra cast their mandate, and in fact, as the D-Day nears, the discourse is now getting downright nasty. This time, it's the BJP that is rebutting Maharashtra Congress chief Nana Patole for saying that it's time to tame the BJP like the dogs. Watch what the BJP has to say. जिस प्रकार की टिप्पणी भारतीय जनता पार्टी पर नाना पटोले ने की है, इससे हैरानी नहीं होती। तो कांग्रेस की मोहब्बत की दुकान नहीं, कांग्रेस के पास केवल नफरत का सामान है और केवल गाली गलौज की जुबान है, और ये इसका एक और प्रमाण है। अब क्या राहुल गांधी नाना पटोले पे कार्रवाई करेंगे? एक राजनीतिक दल जो तीसरी बार सरकार बनाता है, जिसे करोड़ों लोग वोट करते हैं, तो ये तो वोटरों का और जनता का अपमान किया है नाना पटोले ने। उनका बयान दुर्भाग्यपूर्ण है, हास्यपद है। तर्क से वो विरोध करे, ये लोकतंत्र का हिस्सा है। पर आप गालियां, घटिया भाषणबाजी, ये अलोकतांत्रिक है, अलोकतांत्रिक है। ये भारत के लोकतंत्र का काला अध्याय है जिन शब्दों का प्रयोग किया जा रहा। जनता इसका करारा जवाब देगी। आने वाले समय में जनता वोट की शक्ल में इन अलोकतांत्रिक गाली देने वाली संस्कृति को करारा जवाब देगी। हर वो व्यक्ति जो भारतीय जनता पार्टी और महायुति को वोट करता है, उसको नाना पटोले जी डॉग से, कुत्तों से कंपेयर कर रहे हैं। इससे कांग्रेस पार्टी की मानसिकता अपने विरोधियों के प्रति भी दर्शाती है, और कांग्रेस पार्टी की मंशा भी समझ में आती है कि वो अगर सत्ता के अंदर आएगी तो वो अपने विरोधियों के खिलाफ केस कर सकती है, और हर उस वोटर के खिलाफ केस कर सकती है जो उससे अग्री नहीं करता। ये वो इमरजेंसी वाली माइंडसेट है जो इंदिरा गांधी फॉलो किया करती थी। महाराष्ट्र कभी इसको स्वीकारेगा नहीं। नाना पटोले जी बौखला चुके हैं, और उनकी बौखलाहट इसीलिए है क्योंकि राहुल गांधी और नाना पटोले जब जमीन पर जाते हैं, उनको सिर्फ और सिर्फ महाराष्ट्र की जनता कह रही है नो टू कांग्रेस, येस टू बीजेपी, येस टू महायुति। So let me go across to Arunil. Arunil,
It's only 8 days from now when we have India's financial hub going for votes. But instead of jobs, instead of economy, instead of perhaps even the underworld threats which have been coming into Maharashtra, now the entire political discourse has gone to Razakar, to Aurangzeb, to dogs, literally to the dogs. What's happening? Well, that is right. It was basically the first attack was launched by Asaduddin Owaisi, Meghna. He basically had said that against the Britishers, when the followers of Chhatrapati Shivaji Maharaj were fighting against the Britishers, basically the Marathas were fighting. At that time, it was the family of Asaduddin Owaisi himself. They may have fought on the sidelines, on the side of the Marathas, but Fadnavis's family basically saying that the RSS were asking for reprieve letters, for asking for forgiveness from the Britishers at that time. Then Fadnavis immediately shot back, saying that you are basically a follower of Aurangzeb. Aurangzeb was an attacker in the state of Maharashtra. Not even a dog will urinate on the identity of Aurangzeb. Later on, it was Nana Patole, the Maharashtra Congress chief, who basically compared the BJP with dogs, basically saying that it is time now that the BJP should be treated like dogs itself. Another interesting incident, or a significant one, has come in from Maharashtra, that is related to former Maharashtra chief and a former union minister as well, Rao Sahib Danwe. When he was clicking picture with another BJP leader, a party karyakarta was standing over there. Danwe can be seen kicking that BJP karyakarta. This has gone to that level now. You're right. When the discussion should be about politics, the discussion should be about development that has happened within the state. When it should be about positive politics, below the line comments have been made from both the sides, be it from Owaisi's side, be it from Mahavikas Aghadi's side, or from the Mahayuti side at present in the state of Maharashtra. To see why the real issues, the real mudda of election seems to be now hijacked with these kind of political brownie points scoring. In fact, let me go across to Sagarika. Sagarika, can you break down the entire acerbic war of words which has been happening, just to get the timeline straight? And over the last few days, we've been seeing this kind of, back and forth going on between the BJP and the AIMIM. We're talking about Asaduddin Owaisi. And now the Congress too has nosedived. And this time, it's become about dogs. So first, let me tell you how the war of words is playing out between Devendra Fadnavis and Asaduddin Owaisi. It's gone down to 2 tadak as well, Meghna. So now Devendra Fadnavis, while talking about Asaduddin Owaisi, and one of the planks is that there are some who glorify Aurangzeb. Devendra Fadnavis started by saying, "Sun le Owaisi, you have no business in Maharashtra. Stay in Hyderabad. It is unacceptable that some people, glorify Aurangzeb, the tyrant, and now even Tiranga will be unfurled in, Pakistan." When he then went and said that even dogs do not, respect or accept Aurangzeb's legacy. To which Owaisi too has been equally fierce in his retort. Owaisi has responded to Devendra Fadnavis when Devendra Fadnavis cautioned about vote jihad. So now Owaisi says, okay, now tell us about what happened in Ayodhya. The Bharatiya Janata Party lost in Ayodhya. What kind of jihad was happening over there? Why don't you talk about that? Owaisi has also dragged in Prime Minister Narendra Modi and Home Minister Amit Shah's family. While talking about the kind of comments that the Bharatiya Janata Party has made, he says, why shouldn't we also talk about the size of the families that Prime Minister Modi and Home Minister Amit Shah have? So these are the kind of words that are going on. The kind of back and forth between the Bharatiya Janata Party and Owaisi, and now the Congress too is coming in and saying it's time to tame BJP like dogs. Very interesting. This is the kind of discourse which is happening right now. Let me go across to Anand Dubey, who is joining us Uddhav Sena se. Anand Dubey ji, क्या चल रहा है महाराष्ट्र में? Considering that there are so many significant issues, it could be about the Maratha quota, it could be about Marathi pride, it could be about economy, jobs, it could be about civic issues, about security issues, but it's all come down, literally come down to the dogs. नमस्ते, गुड मॉर्निंग। देखिए, महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी का एक ही उद्देश्य है कि हमारे महाराष्ट्र को सुजलम सुफलम बनाना है, आगे बढ़ाना है, विकास की राह पर ले जाना है, रोजगार देना है, किसानों को एमएसपी देनी है, माताओं बहनों की सुरक्षा पर काम करना है, उनके हाथों को मजबूत बनाना है और हमारे पूरे राज्य को
कैसे एक गति प्रदान करें, कैसे हमारे राज्य का जो कर्ज बढ़ गया है, बोझ हो गया, उसको कम किया जाए, कैसे भी करके महाराष्ट्र को इंडस्ट्री मिले। मगर आनंद दुबे जी, आपने ये नाना पटोले जी को बताया है जो आपके अलायंस पार्टनर्स है, वो तो कुत्तों के बारे में बात कर रहे हैं। नहीं, सुनिए तो पहले। ठीक है, राजनीति में, सामाजिक जीवन में भाषा की अपनी मर्यादा होनी चाहिए, दोनों तरफ से होनी चाहिए। अगर किसी की भावना दुखी है तो हम उसके लिए क्षमा भी मांगते हैं, लेकिन जिस प्रकार महाराष्ट्र में ओवैसी और बीजेपी ने एक प्रकार से नीचे स्तर पर आकर जो काम करना शुरू किया, एक दूसरे के खिलाफ ए टीम बी टीम बनकर जो नफरत का बाजार लगाया हुआ, इसको यहाँ से भगाने की आवश्यकता है। हम पहले दिन से कह रहे हैं कि बीजेपी और MIM ये दोनों एक दूसरे की ए टीम और बी टीम है। एक यहाँ से जहर उगल रहा है तो दूसरा वहां से बारूद उगल रहा है। MIM तो बोलता है कि कांग्रेस बीजेपी की बी टीम है, बट आनंद दुबे जी, आई अप्रिशिएट इट, आपने ये बोला कि भाषा की मर्यादा होनी चाहिए, भले ही दोनों साइड पे होनी चाहिए, मगर होनी चाहिए। डू स्टे ऑन विद अस आनंद दुबे जी। चरण सिंह सापरा भी हमारे साथ बन रहे हैं ऑफ द कांग्रेस पार्टी। सापरा जी, आपके अलायंस पार्टनर्स भी अब बोल रही है कुछ तो मर्यादा रखिए भाषा में। Why do you have the head of Maharashtra state, Nana Patole, come out and compare the BJP to the dogs? नहीं, बिल्कुल भाषा की मर्यादा होनी चाहिए, लेकिन ज्यादा जवाबदारी जो है वो बन जाती है जो सत्ताधारी पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी जो सत्ता में केंद्र में भी 10 साल से है, और किस तरह से उनकी भाषा शैली हुई है वो जनता देख रही है। हाँ, जहाँ तक भारतीय जनता पार्टी और मेरे ख्याल से MIM की आप बात कर रहे थे, मैं तो आपसे कांग्रेस की बात कर रही थी चरण सिंह सापरा जी, मैं तो आपके साथ कांग्रेस की बात कर रही थी। आप नाना पटोले, आप बीजेपी के लीडर्स को आप संभाल नहीं पाते, वो मैं भी समझती हूँ, बट व्हाट अबाउट द पॉलिटिकल डिस्कोर्स जो कांग्रेस से आ रहा है? I feel your questions are becoming longer than they are desired to be. Let me talk. If you have asked me some question, let me answer in my way. I can't answer in your way, please. तो ऐसा है कि भारतीय जनता पार्टी और MIM जो है, इनकी नूरा कुश्ती चल रही है, शैडो बॉक्सिंग चल रही है, और ये शैडो बॉक्सिंग चल रही है षड्यंत्र के तहत कि इनको पोलराइजेशन और काउंटर पोलराइजेशन बहुत जरूरी है। ये SOS कॉल है भारतीय जनता पार्टी का, जो ये बटेंगे तो कटेंगे, इस तरह के जो नारे, ये शुरुआत किसने की है? गाली पॉलिटिक्स की। ये तो उन्होंने शुरुआत की है ना, और शुरुआत किसने? योगी आदित्यनाथ और देश के प्रधानमंत्री। तो सापरा जी, आप बोलियो कि कांग्रेस अभी बीजेपी को फॉलो कर रही है, बीजेपी ने शुरुआत की, अब कांग्रेस भी उन्हें फॉलो कर रही है। अगर संवैधानिक पदों पर बैठे हुए लोगों की जीभ घसरेगी तो निश्चित रूप से उसका असर पूरे महाराष्ट्र में होता है। ये गाली पॉलिटिक्स महाराष्ट्र में लाने की जवाबदारी जो है प्रधानमंत्री और योगी आदित्यनाथ की है। ये पॉलिटिक्स का स्तर गिराने की जवाबदारी जो बनती है वो भारतीय जनता पार्टी पर बनती है। कांग्रेस की नहीं है। गाली नहीं होनी चाहिए, मैं ये कह रहा हूँ, गाली नहीं होनी चाहिए, लेकिन I appreciate you saying that, but चरण सिंह सापरा जी, आपको मैं exactly वही बात बोल रही हूँ, इसीलिए मुझे ये क्वेश्चन बार बार पूछना पड़ रहा है। What about कांग्रेस? कांग्रेस तो अपना एक स्तर बना के रख सकती है। If you are saying you not like the BJP, कांग्रेस can maintain the standards of the political discourse. मैं अभी भी यही कह रहा हूँ कि गाली पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए, लेकिन रामजादे हरामजादे किसने कहा था? घुसपैठिए किसने कहा था? ज्यादा बच्चे पैदा करने वाले लोग किसने कहा था? मंगलसूत्र की बात किसने करी थी? मुजरा करने की बात किसने करी थी? देश के प्रधानमंत्री। जब कॉन्स्टिट्यूशन पदों पर बैठे हुए लोग इस तरह की हल्की और गलिच बातें करेंगे, गटर राजनीति करेंगे, तो कांग्रेस भी करेगी निश्चित रूप पर नीचे ना उसका प्रभाव नीचे तक जाता है। हाँ, तो नीचे तक अब कांग्रेस में भी आ गया है, बिकॉज नाउ यू हैव नन अदर देन द महाराष्ट्र chief of the Congress party, Nana Patole, coming out and saying that BJP needs to be tamed like we tame dogs. But I appreciate it, Charan Singh Sapra speaking for us. The Congress is saying the political discourse has been dropping after the Prime Minister, Yogi Adityanath. They are the ones who have taken the lead when it comes to lowering the discourse of politics in Maharashtra. Meanwhile, let's also show you how exactly over the last few days the battle of barbs has been intensifying between Fadnavis and Owaisi in Maharashtra. Both the leaders, of course, unwilling to scale down the tempo when it comes to polarizing subjects such as vote jihad, such as Razakars, Aurangzeb, and of course Savarkar. Watch this. एक है तो सेफ है। मोदी जी कितना फेंकेंगे आप? पार्लियामेंट इलेक्शन में आपने कहा कि हिंदू बहनों के गलों से मंगलसूत्र निकालकर मुसलमानों को दे दिया जाएगा।
हिंदू भाइयों की भैंसों को लूटकर मुसलमानों को दे दिया जाएगा। मुस्लिम औरतें ज्यादा बच्चे पैदा कर रही हैं। मोदी जी, आपके वालिद साहब ने भी बहुत बच्चे पैदा किए थे, गलत किया था क्या? अमित शाह के कितने भाई बहन बताओ हमको। Well, let me go across to Waris Pathan of the AIMIM who's joining us. Waris Pathan ji, आप हमेशा बोलते हैं that for us it is a fight for the constitution, for secularism, for unity of India and to ensure that minorities are not crushed. मगर इस इलेक्शन में ऐसा लग नहीं रहा कि कोई भी वर्क कर रहा है टुवर्ड्स ईदर यूनिटी और सेक्युलरिज्म। सब तो ये कुत्तों की बातें कर रहे हैं, कबर की बातें कर रहे हैं, औरंगजेब की बातें कर रहे हैं। वेयर इज द पॉलिटिकल डिस्कोर्स गोइंग? तो यही सवाल तो आपको करना चाहिए बीजेपी वालों के ऊपर। वो क्या बात कर रहे हैं? वो डेवलपमेंट विकास की बात कर रहे हैं, वो तो औरंगजेब की बात कर रहे हैं, झंडा लहराने की बात कर रहे हैं। मगर लव लेटर की बातें तो आपने की, आपकी पार्टी ने की। वो लोग तो जो नफरत फैला रहे हैं, वो नफरत का तो जवाब हम तो मोहब्बत से दे रहे हैं। हम तो विकास का, डेवलपमेंट की सब बात कर रहे हैं। मगर ये लोग का घबराहट और बौखलाहट साफ नजर आ रही है कि बीजेपी को अपनी कुर्सी खदकती हुई नजर आ रही है। इसलिए अब सब शुरू हो गया, बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। अरे भाई, तो हमारे पास हम बटेंगे तो हम कटेंगे, वैसा है। बीजेपी अपने ओरिजिनल मुद्दे से खो गई है, चुनाव में पूरा पोलराइज कर दिया। इलेक्शन कमिश्नर क्या कर रहा है? अगर देवेंद्र फडणवीस इस तरह की भाषा का उपयोग कर रहे हैं तो इलेक्शन कमिश्नर क्यों कोई एक्शन नहीं ले रहा है? अगर इस तरह की भाषा का उपयोग वारिस पठान करता तो अब तक तो नोटिस आ जाता था। मगर ऐसी भाषा तो अब ओवैसी जी भी यूज कर रहे हैं। इफ यू स्टैंडिंग अगेंस्ट द पॉलिटिकल डिस्कोर्स ऑफ दिस नैरेटिव, तो आप बोलिए कि इट शुड बी फ्रॉम दोनों साइड से। नहीं, हमने क्या बोला, क्या बात है, बोला क्या ओवैसी साहब ने? तो ओवैसी साहब तो अपने प्रत्याशी को ले लिए कैंपेनिंग कर रहे हैं। वो तो बोल रहे कि भाई हम डेवलपमेंट करेंगे, विकास करेंगे। प्राइम मिनिस्टर के माँ बाप को नहीं छोड़ा, उनकी बातें की। ओवैसी जी ने ये बोला कि लव लेटर लिखते थे, सावरकर जी की बात की। जब ये लोग बताते हैं कि इतने बच्चे पैदा करते हैं, ये करते हैं, तो हम भी बताते हैं कि भाई किसके ज्यादा बच्चे, किसके ज्यादा कम बच्चे। उसमें क्या गलत बात किया मैडम, बताइए हम लोग को। तो आपको लगता है ड्रैगिंग इन फैमिलीज टू ब्रिंग डाउन द पॉलिटिकल राइवल्स वो ठीक है? दैट इज एक्सेप्टेबल एआईएमआईएम से? चलेगा, यहाँ धमकी देंगे चलेगा, मस्जिद में घुस के मारेंगे, चुन चुन के मारेंगे, ये धमकी नहीं है, ये चलेगा। बाजू में बिठा के हमारे हुजूर की शान में गुस्ताखी करने वाले को महाराष्ट्र का सीएम प्रोटेक्शन देता है, ये चलेगा। उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लेते, कोई एफआईआर नहीं करते, कुछ नहीं करते, भड़काऊ बयानों पे, ये चलेगा। चुनाव के वक्त पोलराइज करना, मुसलमानों को ये बोलना मंगलसूत्र लेके वहां दे देंगे, ये कर देंगे, वो आप उसके ऊपर आप कोई ऑब्जेक्शन नहीं लेते, कोई बात नहीं करते। लेकिन हम अगर सच्चाई बताते हैं, हम अगर आपको बताते हैं कि ठीक है वहाँ पर डेवलपमेंट विकास करेंगे, हम एक्सपोज करते हैं बीजेपी आरएसएस की जो गंदी मानसिकता है, उसको हम एक्सपोज करते हैं पब्लिक के सामने। तो कांग्रेस तो बोल रही है कि एआईएमआईएम बी टीम है, वो चाहते ही है कि इस लेवल तक डिस्कोर्स गिर जाए, कि पोलराइजेशन हो जाए, कि बीजेपी जीत जाएगी। आप क्या बीजेपी को जितवा रहे हैं? नहीं, हम खुद हमारे उम्मीदवारों को जितवा रहे हैं। हम काहे को किसी के लिए? कांग्रेस को खुद में सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन करना चाहिए। बार बार सब पे बीजेपी टीम का लेबल लगाना, ये इनकी आदत बन गई है। ये खुद में सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन नहीं करता। हरियाणा का चुनाव अभी गया ना रिसेंटली, हम लोग लड़े क्या? हम लोग तो नहीं लड़े, हम तो हरियाणा से गुजरे भी नहीं, तो फिर क्यों हार गए लोग? तो खुद अगर नहीं जीत सकते तो दूसरों के ऊपर ये हार का टिकड़ा नहीं पड़ना चाहिए। हम तो लड़ रहे हैं, हम तो जीतने की कोशिश कर रहे हैं। हमको यकीन है हमको जनता वोटों से, मोहब्बतों से नवाजेगी और हमारे कैंडिडेट हम जीतेंगे हर तरफ इंशाअल्लाह। मगर अगर जीतना था, वी वुड हैव विश्ड कि मुद्दों पे जो भी कैंडिडेट है वो मुद्दों पे जीते, गालियों पे नहीं। But appreciate it. Thank you so much, Waris Pathan ji, हमारे साथ बनने के लिए. We've been talking about the acerbic war of words that we've seen between Devendra Fadnavis and AIMIM chief Asaduddin Owaisi. Let's put them all together and show for you what has been happening over the last couple of days. हम लोगों ने पिछले चुनाव में वोट जिहाद देखा। मोदी जी को हराना है ये कहकर एक वोट जिहाद किया गया। हम लोग थोड़े सोए हुए थे, इसलिए कई जगहों पर हम लोगों को मात खानी पड़ी। लेकिन अब वोट जिहाद का जवाब वोट के धर्म युद्ध से हमको देना है। तुम बार बार जिहाद जिहाद बोलते, सुनो फडणवीस, तुम्हारा हीरो जेल में बैठकर अंग्रेजों को लव लेटर लिख रहा था। सुनो फडणवीस, 1820 के बाद इस मुल्क की आजादी की लड़ाई में सबसे पहला फतवा किसने दिया? हमारे मदरसों के जिम्मेदारों ने दिया।
जिहाद का फतवा दिया। फडणवीस, जब तुम्हारे बुजुर्ग नहीं थे, अंग्रेजों से लड़ने का तरीका हमने देश को सिखाया। ऐसा है, ये रजाकारों के वंशज हैं, जिन रजाकारों ने हमारे तमाम मराठवाड़ा के लोगों पर अत्याचार किए, जमीनें लूटी, जिन्होंने हमारी महिलाओं की अस्मत को लूटने का प्रयास किया, हमारे परिवारों को तहस नहस किया, ये उनके वारिस है। ये किस मुंह से हमसे बात करेंगे? अरे देवेंद्र, तू अयोध्या की सीट तेरी पार्टी हार गई, कौन सा तेरा जिहाद था वहां पे, बोल। कैसा हार गए तुम लोग वहां पे? कौन हराया तुमको वहां पे? मगर मकसद क्या है बीजेपी का? इनको डराओ। 75 साल पहले भी ऐसा डराया जाता था, अब वही चीज को इस्तेमाल कर रहे हैं। Well, this war of words is going to be the top focus story here on Times Now. We are going to be tracking it very closely. Only 8 days to go before the Mahabharat for Maharashtra. With that, we are slipping in.